Hello, everyone. Welcome to another class. I welcome all my lovely entrepreneurs of 12th grade to today's class. And this class is a class which is of great importance. As always, I tell it to you. Let's have a look towards the title of the class. It's from Business Arithmetic. And today's class is Inventory Control and Economic Order Quantity. Again, a very important class. And from the perspective of examination, and from the perspective of understanding the specific subject that is entrepreneurship. These are the topics under discussion in today's class. हम पहले पॉइंट पे बात करेंगे what exactly is inventory, what is the purpose of inventory and why we need inventory. हम सेकंड पॉइंट पर बात करेंगे कंट्रोल की. थर्ड पॉइंट पर हम बात करेंगे आइटम्स दैट मेक अप द इन्वेंट्री. फिर हम एक एक्रोनिम पर काम करेंगे दैट इज स्टॉक कीपिंग यूनिट और एसकेयू. फिर हम मॉटले क्राउड पर बात करेंगे, स्पेस पर बात करेंगे, वैल्यू पर बात करेंगे और लीड टाइम पर बात करेंगे. एंड द लास्ट वन इज कंक्लूजन. यस, लास्ट वन इज कंक्लूजन. और फिर हम कंक्लूजन पर बात करेंगे. So without much ado, let's start today's class. So dear students, it's very important कि आपको पता हो कि what is inventory, why it is needed and what is the purpose of inventory. किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, चाहे वो प्रोडक्शन है, चाहे वो सर्विसेज है, you require you require inventory, and without inventory you cannot think much about running your business properly. So the first point, the word inventory means a collection of things that in a business context, inventory is a collection of things in a business context. जब आप बहुत सारी चीजों को एक साथ कलेक्ट करके रखते हैं in order to use them for business and further selling, आप उसे इन्वेंट्री कहते हैं. इन्वेंट्री रेफर्स टू रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स, spare parts and finished products used for making sales. तो बच्चों, a collection of things in the form of raw materials, semi finished goods, spare parts and finished products used for making sales is called inventory. So this first point is important. Just a minute. First part is very important. Let's talk about the second point. Inventory consists of tangible items, if we talk about production, that businesses use in manufacturing or trading. It does not include intangible things like memories or skills. तो ध्यान रखना है कि आपने जब भी इन्वेंट्री की बात हो तो हमेशा हमने टेंजिबल आइटम्स को ही इन्वेंट्री मानना है, जिससे आप बिजनेस कर सकते हो, जिससे आप ट्रेडिंग कर सकते हो. इससे ही कंपनियां खुशहाल हो रही हैं और इससे ही कंपनियों को नुकसान हो. थर्ड पॉइंट, इन अकाउंटिंग, inventory refers to the total value of all the items owned by a business. अकाउंटिंग में इन्वेंट्री दूसरे तरीके से दिखाई जाती है. Here it is total value of all the items owned by a business. Ownership matters, more than one location.
Even if items are stored at a vendor's place, they are still the part of a company's inventory till the time they are not sold off और उसका पैसा कंपनी को नहीं आ जाता. However, items that belong to others but are stored on a company premises are not included. हाँ, वो चीजें जो औरों को बिलोंग करती हैं और वो कंपनी के प्रीमाइसेस पे रखी हुई हैं, वो इन्वेंट्री का पार्ट नहीं है. जबकि जो कंपनी मेड गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो वेंडर के पास भी रखे हुए हैं और वो बिकते नहीं, दे आर द पार्ट ऑफ द कंपनीज इन्वेंट्री. देयर आर डिफरेंट वेज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पर्पसेस. और डिफरेंट तरीके हैं जिससे आप इन्वेंट्री को, स्टॉक को आप चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू नो अकाउंटिंग पर्पसेस, अकाउंटिंग के लिए. तो जो माल किसी दूसरे का है, आपके प्रीमाइसेस पे रखा हुआ है, वो इन्वेंट्री नहीं माना जाएगा. और आपका कोई भी माल है किसी दूसरे के प्रीमाइसेस पे रखा हुआ है, which still belongs to you, is your own inventory. Let's move on to the next point. अब बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एनीवेयर इन द वर्ल्ड. कंट्रोल. Anywhere in the world, control is very important. If someone has to study, what he has to control, he has to control distraction. If someone has to lose weight, he has to control overeating. So control is a very important point. और अगर आपने इन्वेंट्री को भी कंट्रोल करना है, तो यू नीड टू लर्न द पावर ऑफ कंट्रोलिंग एंड हाउ इट कैन बी क्रिएटेड. The word control means ensuring that things happens as expected. जैसा आप सोच रहे हैं वैसी ही चीजें हो रही. In inventory control, businesses aim to manage their stock effectively. Inventory control में businesses का एम यही होता है कि जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना स्टॉक तो मेंटेन रहे ही रहे. तो अवॉइड शॉर्टेजेस और एक्सेस. दोनों ही केस में इन्वेंट्री कम होना या ज्यादा होना बिजनेस के लिए नुकसान. A good control system helps achieve the desired result. So control is very important. मतलब अभी आप इन्वेंट्री के बारे में ही सब कुछ पढ़ेंगे कि इन्वेंट्री मैनेज कैसे करनी. एंड दिस इज एन इम्पोर्टेंट. The main goal of inventory control is to ensure that stock is always available when needed. तो मेन गोल जो है, अब बच्चों बड़े ध्यान से आपने इस फ्रेज को देखना है. द मेन गोल ऑफ इन्वेंट्री, उसका मेन गोल, ऑब्जेक्टिव क्या है? द मेन गोल of inventory control is to ensure that stock is always available when needed. However, simply keeping large amounts of stock is not a solution as it increases cost. अगर बहुत ज्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है और बिक नहीं रहा तो वो आपकी कॉस्ट में इजाफा ही करेगा, इंक्रीज ही करेगा. द चैलेंज इज टू मेंटेन द राइट बैलेंस. ना ज्यादा शॉर्टेज हो ना ज्यादा एक्सेस. A well-planned inventory control system helps in managing inventory efficiently. और एक अच्छे से प्लान किया गया इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स इन मैनेजिंग इन्वेंट्री एफिशिएंटली. और वो पास्ट के रिकॉर्ड्स को चेक करके बनाया जाता है कि पास्ट में इस महीने में, पिछले साल इस महीने में हमने कितनी सेल्स की थी, नेक्स्ट महीने में कितनी सेल्स की थी, एक क्वार्टर में कितनी सेल्स की थी, 6 मंथ्स में कितनी सेल्स की थी. लाइकवाइज it ensures both physical control, keeping track of actual items, and financial control, managing costs as well. Very very important. ये तो बहुत important. A well planned inventory control system helps in managing inventory efficiently. Businesses must focus on both physical and financial aspects of inventory control. तो बिजनेस को दोनों ही एस्पेक्ट्स पर काम करना पड़ता है. एक तो फिजिकली इन्वेंट्री प्रेजेंट हो और दूसरा इट शुड हैव सम हेल्प इन मैनेजिंग कॉस्ट एज वेल.
The following section discusses the different types of items in an inventory and how to manage them effectively. So upcoming जो आपका पॉइंट है उस पर हम डिस्कस करेंगे different types and items in an inventory and how to manage them effectively. So this is all about control. पहला पॉइंट था इन्वेंट्री और दूसरा पॉइंट है हमारा कंट्रोल. Both these points are important. Items that make up inventory. The first one is stock keeping unit. एक ऐसा यूनिट जिसपे आप स्टॉक रखते हैं. एक पैकेट के अंदर 10 पेन इज एन एसकेयू. स्टॉक को कीप करके उस यूनिट में से रखा हुआ एसकेयू. तो हम इन्वेंट्री को कैसे कैसे मैनेज करते हैं एसकेयूज की फॉर्म. एवरी इन्वेंट्री आइटम इज असाइंड अ यूनिक एसकेयू कोड. हर एक इन्वेंट्री आइटम को एक एसकेयू कोड असाइन किया जाता है which helps identify its characteristics such as size, color, and weight. SKU helps track inventory using barcodes और RFID tags. इनमें बारकोड लगे होते हैं, जैसे उन्हें आप स्कैन करते हैं तो वो बताता है कि इसमें क्या प्रोडक्ट है, किस शेप एंड साइज का है, किस कलर का है, किस वेट का है. और RFID है, RFID की फुल फॉर्म अगर आप जानना चाहते हैं तो इसी क्लास में आपको देता हूँ. जैसे में टैग्स लगे होते हैं वो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस. तो जो को बार सॉरी टैग्स लगे होते हैं इनके ऊपर, वो आरएफआईडी से जैसे स्कैन करता है वो सारी इंफॉर्मेशन उस स्क्रीन के ऊपर आ जाती है. तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है. और बारकोड्स को तो आपको पता है यूनिक नंबर दे दिया जाता है, जैसे स्कैन किया जाता है पूरी इंफॉर्मेशन निकल के आ जाती है. वैरायटी ऑफ आइटम्स. इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल, spare parts, semi-finished goods, finished products, and consumables. Though they are grouped together in financial statements, each category requires different hand. तो आप भी बात याद रखिएगा कि सारे चीजें आपका रॉ मटेरियल है, सेमी फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स है, पैकिंग मटेरियल है, आपके कंज्यूमेबल्स है, इनको हर एक संभालने का तरीका भी अलग है. पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दे आर ग्रुप टुगेदर क्योंकि इन पर आप पैसा इन्वेस्ट कर चुके होते हैं एंड दे आर द पार्ट ऑफ द कंपनीज इन्वेंट्री. स्पेस कंसिडरेशन. सम आइटम्स टेक अप मोर स्पेस बट हैव लो वैल्यू. कई आइटम्स है बहुत ज्यादा स्पेस लेते हैं पर उनकी वैल्यू कम होती है. जिस प्रकार से हमारे दिमाग में बहुत ही बेसिक से आइडिया या वेस्ट आइडियाज अगर सारा दिन, सारा हफ्ता, सारे साल रहते हैं तो बहुत ज्यादा स्पेस दिमाग को ऑक्यूपाई करते हैं. तो दैट वाई परेटोज प्रिंसिपल इज इंट्रोड्यूस्ड. उसमें जो बहुत ज्यादा आपका स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उसके अंदर है रॉ मटेरियल्स फॉर पेपर मिल्स, while other take up little space but are of high value like machine machinery parts, diamonds. A good inventory system must account for these differences. और जो अच्छा इन्वेंटरी सिस्टम है वो इनको मैनेज करके चलता है. भाई आपको रॉ मटेरियल भी चाहिए, आपको स्ट्रॉज भी चाहिए, आपको पेपर्स भी चाहिए, आपको बॉक्सेस भी चाहिए, तो मैनेज तो आपको सब करना पड़ेगा. इसे ही कहते हैं कि यू हैव टू नो द आर्ट ऑफ मैनेजिंग इन्वेंटरी प्रॉपर्टी. वैल्यू डिफरेंसेस. Not all inventory items have the same value, that's for sure. Some contribute more to overall cost than others. कुछ ज्यादा ओवरऑल कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन करते हैं, कुछ कम करते हैं. Business use technique like Pareto's principle to identify high value items and manage them effectively. तो 80% प्लेस उन्हें स्पेस प्रोवाइड कर दिया जाता है जो हाई वैल्यू आइटम्स होते हैं और 20% उन्हें प्रोवाइड किया जाता है जो लो वैल्यू आइटम्स होते हैं. और दुनिया के हर जगह पे होते हैं, हर काम में होते हैं लो वैल्यू आइटम्स और हाई वैल्यू आइटम्स.
And this is the beauty of Will Pareto's principle, which is also famous as 80-20 principle. 80-20 principle. 20% of your tasks bring 80% of results, and vice versa too. 20% टास्क आपके बहुत महत्वपूर्ण टास्क आप करिए, आपको 80% रिजल्ट्स मिलेंगे। और 80% बेसिक से काम करते रहिए तो आपको 20% रिजल्ट्स मिलेंगे। दैट इज व्हाट लाइफ, दैट इज व्हाट विल फरेदोस Pareto's principle is all about, 80-20 rule. It is famous as 80-20 rule. फिर हम बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट पे, मॉटलेस क्राउड की या मॉटले क्राउड की। इस पर क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान से देखिए। बाकियों पर तो आप लिख सकते हैं, पर मॉटले क्राउड एक थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है, टेक्निकल भी इतनी टफ नहीं है, पर एक बार समझाऊंगा आपको समझ में आ जाएगी। इन इन्वेंट्री कंट्रोल, अ मॉटले क्राउड refers to mixed assortments of stock items, often leading to inefficiencies or complexities in management. आपने बहुत सारा इन्वेंट्री मिक्स एंड मैच कर दिया है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या क्या था, किसको कैसे यूज करना था, तो इट इज गोइंग टू क्रिएट मोर कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस इन द फ्यूचर दैट यू नीड टू वर्क ऑन. It signifies an unorganized or varied inventory that may include obsolete, slow moving और mismatched items. तो इसको आप अनऑर्गेनाइज वे ऑफ अरेंजिंग द स्टॉक कह सकते हैं. बहुत सारे घरों में आजकल मोटले क्राउड है, बहुत सारा सामान भरता जा रहा है, चीजें अपनी जगह पर होती नहीं, तो एक क्राउड का फॉर्म ले लेती. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वैसे जरा अंडरलाइन कर दूं. इट सिग्निफाइज एन अनऑर्गेनाइज्ड और वेरिड इन्वेंट्री, कई टाइप की इन्वेंट्रीज को, दैट में इंक्लूड ऑब्सोलीट, स्लो मूविंग और मिसमैच्ड आइटम, जब इकट्ठे हो जाते हैं. एग्जाम्पल, विदाउट प्रॉपर प्लानिंग द वेयर हाउस टर्न इनटू अ मोटले क्राउड ऑफ एक्सेस स्टॉक्स एंड आउटडेटेड प्रोडक्ट्स. स्पेस, inventory items vary in size and storage requirements, making space management crucial. Some bulky items like straw take up lot of material space but have low value, while diamonds require. Next is value, जैसे पहले भी करा चुका हूं, ये कुछ एक आधे पॉइंट्स है ना, we have used them once again. Not all inventory items have the same financial worth, making value-based classification essential. The Pareto's principle 80-20 rule helps prioritize inventory management by focusing on high-value items that contribute most to overall value. तो हम उन पर ज्यादा फोकस करते हैं जो हाई वैल्यू होते हैं और जिन पर ओवरऑल वैल्यू कंपनी की बेस्ड होती है. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, लीड टाइम. लगता आसान है भी आसान, पर जो क्वेश्चन आता हर बार, लीड टाइम क्यों. 5 पॉइंट्स मैंने बनाए हैं लीड टाइम पर. लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स दैट. लीड टाइम इज द टाइम इट टेक्स फॉर समथिंग टू बी रेडी आफ्टर यू ऑर्डर इट. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ऑर्डर अ टॉय ऑनलाइन एंड इट टेक्स 5 days टू रीच यू, द लीड टाइम इज 5 days. ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन कर दिया कि आपको सिंपल वर्ड में भी समझ आना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज लीड. फिर आगे चलते हैं. सेकेंड पॉइंट, लीड टाइम इज द टाइम टेकन टू मैन्युफैक्चर और प्रोक्योर एन आइटम. किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के टाइम को भी हम लीड टाइम कहते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग टिल द एंड. इट डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, प्रोसेसिंग टाइम, मशीन शेड्यूलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस. आपने Amazon पर कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, आज ऑर्डर किया है, एंड इफ इट कम्स टू योर प्लेस आफ्टर 3 days, तो जो आज ऑर्डर करना और 3 दिन के बीच का टाइम है उसे आप लीड टाइम कहते हैं.
from beginning to give an order, to place an order, then waiting for 2-3 days and then accepting it, ये जो 2-3 दिन का वेटेज है, दैट इज लीड। ये रॉ मेट प्रोडक्शन में बहुत होता है कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप देखिए, जैसे प्रोडक्शन चल रही होती है और जैसे आपको पता होता है कि अब रॉ मटेरियल खत्म हो जाएगा 3 दिन बाद, यू यू नो डू अ री ऑर्डर। अब रॉ मटेरियल का री ऑर्डर दे देते हैं कि 3 दिन बाद फिर से रॉ मटेरियल आ जाएगा, तो आपकी प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूस रहेगी। थर्ड पॉइंट, द लीड टाइम फॉर आइटम इज नॉट ऑलवेज फिक्स्ड फॉर श्योर। हर आइटम के लिए लीड टाइम फिक्स नहीं होता। फैक्टर्स लाइक सप्लाई चेन डिलेज और इंक्रीज डिमांड कैन कॉज फ्लक्चुएशंस। कई बार सप्लाई चेन में डिलेज हो जाते हैं, कई बार प्रोडक्ट्स की जो सप्लाई है उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, तो फ्लक्चुएशन आ जाते हैं। बिजनेसेस मस्ट प्लान इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू अवॉइड शॉर्टेजेस। और बिजनेसेस को ड्यूरिंग प्रोडक्शन अपनी इन्वेंट्री को प्लान करके चलना चाहिए इन ऑर्डर टू अवॉइड शॉर्टेज। सम इन्वेंट्री आइटम्स आर readily available while others are custom made and have a longer lead time. Custom made items often have limited suppliers, making it important to manage orders carefully. अब बच्चों कुछ प्रोडक्ट्स है ना, आपको ना मशीन द्वारा बना दिए जाते हैं, कुछ को ना हाथ से बनाया जाता है, कस्टम मेड बनाया जाता है, आप ऑर्डर्स देते तब बनाया जाता है, तो उनका लीड टाइम अलग होता है। मशीन मेड गुड्स का लीड टाइम अलग होता है, तो लीड टाइम प्लेज अ वेरी क्रूशियल। और जो क्वेश्चन बनता है, आप लेके चलिए, मॉटले क्राउड पर भी क्वेश्चन आ सकता है, लीड टाइम पर भी आ सकता है, और आप इसे 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन लेके चले। और अगर नहीं पता होगा ना, तो जनरली बच्चे एग्जाम में गर्ल्स लिखते हैं, दैट यू नीड टू फोकस नाउ। मैं फोर्थ पॉइंट पर दोबारा ले लेता हूँ। सम इन्वेंट्री आइटम्स आर रेडीली अवेलेबल while others are custom made and have longer lead times. Custom made items often have limited suppliers. ध्यान रखना है, कस्टम मेड आइटम के सप्लायर ज्यादा नहीं होते, लिमिटेड सप्लायर्स होते हैं, मेकिंग इट इंपॉर्टेंट टू मैनेज ऑर्डर्स केयरफुली। इसे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। Often have limited suppliers and making it important to manage orders carefully. Understanding lead time is crucial for inventory control. Businesses need to maintain enough stock to avoid delays while not overstocking, which can increase cost. तो आपको दोनों चीजों का ध्यान रखना है, ओवर स्टॉकिंग भी नहीं करनी, अंडर स्टॉकिंग भी नहीं करनी, क्योंकि दोनों केस में नुकसान आपका ही है। सीजनलिटी ऑफ सप्लाई, अब कुछ प्रोडक्ट सीजनल होते हैं, उनकी इन्वेंट्री अलग से मेंटेन करनी पड़ती है, और वो आपके जनरली आपके कंज्यूमेबल गुड्स है। सब इन्वेंट्री आइटम्स लाइक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैव सीजनल अवेलेबिलिटी। Items such as grains, fruits, and vegetables are not always in supply throughout the year. किसी मौसम में आपको ऑरेंजेस मिलेंगे, किसी मौसम में आपको मैंगोज मिलेंगे, और इनकी भी ना कोल्ड स्टोरेज की जाती है ताकि इनकी अवेलेबिलिटी ऑन टाइम बनाई जा सके। Businesses dealing with seasonal products need to store them carefully and plan their purchase in advance to avoid shortages during off season. और अगर ऑफ सीजन में भी इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, कई जगह पड़ती ही होगी, तो इनकी स्टोरेज मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, ताकि जैसे ही डिमांड आए वैसे ही आप उस डिमांड को फुलफिल कर सकें। इन्वेंट्री में रखना जरूरी है। डिमांड फॉर सम प्रोडक्ट्स इज आल्सो सीजनल। फॉर एग्जांपल, स्कूल सप्लाईज सी हायर डिमांड एट द स्टार्ट ऑफ स्कूल ईयर विच इज अराउंड अप्रैल में, तो उस टाइम पर डिमांड स्कूल सप्लाई की बहुत ज्यादा होती है। while certain festivals revealed related products are needed only at specific time. अब आप देखिए, दिवाली बहुत बड़ा फेस्टिवल है इंडिया का। जब भी दिवाली की परचेज करने जाते हैं तो हमें लगता है कि सारी चीजें तो ये कल ही बनी होगी। नो,
दे स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग दीज थिंग्स 2 months ago, बिकॉज उसके बाद लीड टाइम भी तो है ना, जगह पर चीजें पहुंचानी भी। तो seasonality of supplies also plays a crucial role in order to, hamper or, promote inventories. Companies must predict seasonal demand patterns, and manage inventory accordingly to ensure they meet customer needs without overstocking. तो आपको सीजनल डिमांड के पैटर्न्स पता होने बहुत जरूरी है, ताकि आप ओवरस्टॉकिंग ना कर रहे। शेल्फ लाइफ एंड सेफ्टी एस्पेक्ट्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इजी है पर इंपॉर्टेंट है। Some inventory items such as food, medicine and flowers have a limited shelf life. शेल्फ लाइफ का मतलब एक बार ने शेल्फ पे आपने रख दिया, फ्लावर्स 1 दिन में 2 दिन में मैक्सिमम, फूड मतलब फ्रूट्स वगैरह हफ्ते भर में, वेजिटेबल्स 2-3 दिन में। इनकी शेल्फ लाइफ होती है, उसके बाद यू हैव टू टेक देम ऑफ शेल्फ। दे नीड स्पेशल स्टोरेज कंडीशंस लाइक कोल्ड स्टोरेज और freezers to remain usable. Expiry dates on products means business must sell them before they become अनयूजेबल। एक्सपायरी डेट का मतलब ये होता है कि आपने इसे तब बेच लेना है जब ये यूजेबल ना यूजेबल हो। ये ना हो कि एक्सपायरी डेट आ जाए, ये अनयूजेबल हो जाए, फिर आप उसे बेच लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पुअर इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैन लीड टू फाइनेंशियल लॉसेस ड्यू टू एक्सपायर्ड स्टॉक। आपको पता ही नहीं चला, अभी भी आपका प्रोडक्ट बिकने में 2 महीने हैं, तो थोड़ा कम दाम पर उसको बेच सकते थे कि वो बिक जाए, पर एक बार एक्सपायरी हो गया तो कंप्लीट प्रोडक्ट की वैल्यू का लॉस आपको हो, तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। Certain items such as chemicals, gasoline, explosives require careful handling and storage due to safety concerns. Proper safety measures must be in place to prevent accidents. अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट आपको बात बता, प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स मस्ट बी एट प्लेस टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। अब मुझे कह रहे एग्जाम्पल सुनिए, आपने कई बार देखा होगा जो घी के पैकेट्स होते हैं 1 लीटर के, और ये तो हमारी कंपनी में लाइव हुआ था। घी के पैकेट से तो एक घी का पैकेट लीक कर रहा था। देखिए कितना हाउस कीपिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है कई बार। वो घी का पैकेट लीक कर रहा था, और एसल्स पे, उन्हें गॉडुलास कहते हैं, जिसके ऊपर आप घी के पैकेट्स रखते हैं, तो वहां पे वो पड़े हुए थे, वहां से कंजेक्टिव ऑयल में से लीक हो रहा था उसमें से। तो तभी एक एजेड लेडी हुज एज वाज अराउंड 67 to 70, एंड शी वाज अनेबल टू वॉक प्रॉपर्ली, तो धीरे धीरे चल रहे थे, उनका पैर उस घी पर पड़ा, शी स्लिप, उनका सिर एसल से टकराया, एंड इंजरी हुई एंड शी डाइड। तो उसमें क्या हुआ कि ये एक्सीडेंट्स है, और इन्हें प्रिवेंट कब किया जाता है, जब प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स लिए जाए। और हमने फिर इसको बहुत लोगों को समझाया, और हाउस कीपिंग ने भी बहुत ध्यान से इन चीजों पर काम करना शुरू। तो आप इन बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते अंडर एनी कॉस्ट। और देखिए एक ना मर्फीज लॉ है, व्हाट कैन हैपन विल हैपन। जो होना है ना वो होके रहता है। आप कई बार देख लीजिए, कई लोग कंप्रेस गैस गाड़ी में रखते हैं, लगाते हैं सिलेंडर के फॉर्म में, ठीक है, इट्स अ वेरी गुड मीडियम टू सेव फ्यूल फॉर पोल्यूशन कंट्रोल एंड एवरेज। बट आपने कई बार देखा होगा, जब आप इसको केयरलेसली यूज करते हैं, तो इसमें ब्लास्ट भी हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए जाएंगे, it can lead to hazardous circumstance. Fourth point, businesses dealing with hazardous materials need to follow strict regulations to store and transport them safely. Failure to do so can lead to legal issues and financial penalty. Obsolescence. Some inventory stock items become outdated due to changes in technology or market demand. Businesses must regularly check their inventory
to avoid holding obsolete stock. तो आपको रेगुलरली स्लो मूविंग आइटम्स को चेक करना है कि भैया पुराने तो नहीं हो रहे, पड़े पड़े ये तो बिक ही नहीं रहे हैं, तो व्हाट टू डू नेक्स्ट, इन पे सेल लगा के इनको जल्दी जल्दी निकाला है. Items such as electronic components, fashion products, and certain machinery parts can quickly become obsolete. Companies need strategies to sell or repurpose such items before they lose their own value. To reduce the risk of obsolescence, businesses should keep track of market trends and technological advancements. तो आप बहुत ऐसी टेक्नोलॉजिकल चीजें ना खरीदें जो मार्केट में चल नहीं रही, इन ऑर्डर टू शो ऑफ जस्ट. और कोई ऐसा अपैरल भी है, कोई ऐसा कपड़ा भी है जो आपको लगता है कि अब ये फैशन से जा रहा है, तो उसको बॉग ऑफ लगा के बाय वन गेट वन फ्री आप उसे निकाल सकते हैं. नहीं तो पूरे कपड़े की कॉस्ट, पूरे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी. मैनेजिंग ऑब्सोलेसेंस इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी इन्वेंटरी सिस्टम. Proper forecasting and flexible purchasing strategies can help minimize losses, to outdated stock. Outdated stock बहुत हर्ट करता है. उसमें ये लगता है कि कहीं पे ऑपरेशंस डिपार्टमेंट की वीकनेस रही है और फिर इन्वेंट्री कंट्रोल की वीकनेस जरूर रही है. So much with this, we have come to the end of today's class, and where we are going to talk about conclusion. Inventory control is essential for businesses to manage their stock efficiently, ensuring availability while keeping cost low. यही inventory control managers की qualities होती है. Managing stocks efficiently, ensuring availability while keeping the cost low. Important point है इसमें. Very important point. Understanding different inventory items, their characteristics, and how they should be stored helps businesses improve their control systems. Factors like lead time, seasonality, shelf life, safety measures, and obsolescence play a major role in inventory management. Businesses must consider these factors for effective stock control. A well-planned inventory control system ensures smooth operations, reduce financial risk, and helps businesses stay competitive in the market. So, bacho, with all these points that we have covered today on inventory, its control, items that make up inventory, stock keeping unit, motley crowd, space, value, lead time, you would have understood every point of today's class. It was not that tough, but yes, the concept is very important. Inventory control and inventory management. अगर कोई कंपनी अपना इन्वेंट्री कंट्रोल प्रॉपरली नहीं कर पाती, तो ऐसी कंपनी को लॉसेस होने से कोई बचा नहीं सकता. And if on the other hand, a company does everything according to the given formats and systems, और वो अपनी इन्वेंट्री को अच्छे से मेंटेन करती है, एंड दे नीड व्हेन द प्रोडक्ट इज बिकमिंग ऑब्सोल्यूट, उसकी शेल्फ लाइफ का ध्यान रखती है, business is going to grow by leaps and bounds. So बच्चों, from today's class, don't forget to take up your rigorous practice section, in which we have covered the synopsis, 10 most important questions with answers, ten questions along with answers, 10 vocabulary words from the session in English as well as Hindi, 10 objective type questions with answers, 10 true and false statements along with answers, and 10 fill in the blanks along with answers. So, bacho, I hope you have understood the complete concept of inventory control and economic order quantity in today's class. So, until meet next time with another topic from the same unit, business arithmetic. Bye bye for now. God bless you all. Take care. And always remember, it's a presentation by Team Mavericks India Solution. With Mavericks India, you will always gain. Bye bye for now. Take care.